हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमित यादव की पाठशाला में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे होंगे, धीरे धीरे करके पढ़ रहे होंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इसलिए स्टूडेंट्स मैं एक दिन छोड़ करके वीडियो ला रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये एक आइडेंटिटी, ट्राइनोमियल आइडेंटिटी। ट्राइनोमियल आइडेंटिटी मीन्स आइडेंटिटी कंटेनिंग 3 टर्म्स। ऐसी आइडेंटिटी जिसमें 3 टर्म होंगे, उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। उसका प्रूफ देखेंगे, उसका क्या क्या यूज है, कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसको पूरी तरीके से हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोग जो ऑलरेडी हमने वी हैव स्टडीड द आइडेंटिटीज इन प्रीवियस क्लासेस, दैट आइडेंटिटीज हैव लीनियर पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स। उन आइडेंटिटीज में जो पॉलिनोमियल थे स्टूडेंट्स, दे हैव 2 टर्म्स. And today we will discuss the identity containing 3 terms. Suppose you can see students a plus b plus c. There are 3 terms a, b and c and its whole square. What will be the value of this a plus b plus c whole square? इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? तो इसकी वैल्यू ये होगी स्टूडेंट्स। आइए इसको थोड़ा सा याद करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं, हाउ टू प्रूव इट। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर सी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इतना यू कैन लर्न इट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देयर विल बी नो कंफ्यूजन विद इन योर माइंड। नाउ कम नेक्स्ट कम्स टू स्टूडेंट मल्टीप्लाई दीस टू, व्हाट यू विल गेट ए बी। Then you can see students 2ab. Then now next multiply these 2 terms 2bc and double it. Multiply these 2 terms and double it. And in the last multiply these 2 terms and 2ca. So students, by using proper step by step technique you can learn this identity without any difficulty. आप लोग इसको बिना किसी डिफिकल्टी के याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है। If there will be no confusion, a little bit confusion, there will be no confusion in your minds. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले तीनों का स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट ए बी एंड इट्स 2 टाइम 2ab, bc एंड इट्स 2 टाइम 2bc एंड ca इट्स 2 टाइम्स। तो ये स्टूडेंट आइडेंटिटी होती है। आइए इसको समझते हैं कि आखिर ये आती कैसे। कैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं तो सही भी बोल रहा हूँ या ऐसे मैंने कहीं से रट करके लिख दिया है। तो लेट अस चेक, लेट अस वेरीफाई दिस आइडेंटिटी वेदर इट इज ट्रू और नॉट। तो फर्स्टली स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग द एक्सप्रेशन गिवन इन लेफ्ट हैंड साइड, a plus b plus c whole square. Students, you know what is the meaning of square? Square means anything is multiplied by itself. So students, we can write a plus b plus c whole square, a plus b plus c into multiplied by a plus b plus c. Students, we can write or not? So this written like this. अब now we will multiply term by term. We will follow term by term multiplication. Term by term multiplication. So students, pay attention and multiply term by term. A से firstly take a and multiply in these 3 terms. So whenever you multiply, what you will get? A square plus ab plus students ac और ca. ठीक है, ac और ca have same meaning. So identity have ca, so that's why I am writing ca. Now students, I have multiplied by a in these 3 terms. Now take b and multiply in these 3. So again ab plus b square and plus bc. These 3 terms you will get when you multiply a in these 3, when you multiply b in these 3, you will get this. And when you will multiply c, so multiply c, so students ca plus bc and plus c square. Students, you will get these 3 terms. So total 9 terms you will get. When you multiply trinomial by a trinomial, it means you will get total 9 terms.
So students, if you face any problem, you can message me, you can text me, then I will reply you. And now students, you all of you know like terms can be added. Like terms can be added. To put the like terms together, put like terms together. So students, you can see AB here. You can see AB here, here AB and AB. AB becomes 2AB students. You can see BC and BC. This BC and this BC. BC and BC are like terms. And similarly students, you can see CA here CA and here also CA. CA and AC have same meaning students. For example, 2 into 3 and 3 into 2 both have same meaning. So for similarity I am writing CA. So students, you can see I am putting directly A square. You can see A square. It is visible. So you are A square. Here it is B square and here it is C square. So students, arrange करके रख देते हैं. Arrange in a proper way. A square plus B square plus C square. Now AB and AB students जिसमें टिक मार्क है दोनों सेम है. तो AB and AB ठीक है. तो it becomes 2AB and BC and this BC. So this becomes 2BC. And CA and this CA becomes 2CA. So students, you can see we have taken left hand side and simplified, and after simplifying we have got right hand side. So you can see students, this identity is obviously true, and in this way you can prove. In simple 3 steps you can prove this identity. So students, now what I can write? I can write A plus B plus C whole square equals to A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. So this is identity students. This is very important and it is called trinomial identity. Trinomial means this expression has 3 terms A, B and C. A B और C की जगह स्टूडेंट्स कुछ भी आ सकता है. उसको क्या आएगा, कैसे आएगा, उसको हम लोग सीखते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. So this identity can be utilized in 2 different ways. The first way is this identity can be used to expand the expression. Expand the expressions. तो फर्स्ट यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी इज टू एक्सपेंड द एक्सप्रेशन. एक्सपेंड द एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है स्टूडेंट? जैसे बोल दिया कि 2x प्लस 3y माइनस 5z, इसको एक्सपेंड कीजिए. ठीक है स्टूडेंट. तो द फर्स्ट यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी इज सेकंड यूज इज फैक्टराइज द एक्सप्रेशन. स्टूडेंट्स, एक आपको बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया होगा, आपको मालूम है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स होंगे या सब में है प्लेस टर्म्स. तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को आपको फैक्टराइज करना होगा. इट इज वेरी इजी स्टूडेंट्स. यू आर गेटिंग, यू आर अवेयर ऑफ दिस आइडेंटिटी. इफ यू नो हाउ टू यूटिलाइज दिस आइडेंटिटी, हाउ टू अप्लाई दिस आइडेंटिटी, देन दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल फॉर यू. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आइए हम लोग इसकी यूज देखते हैं. समझ में आ रही होगी. यू आर गेटिंग दिस आइडेंटिटी. सो यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ ट्राइनोमियल एंड इट्स स्क्वायर्ड. तो इट इज स्क्वायर्ड. तो यू आर टू एक्सपेंड एंड एक्सपेंशन ऑफ दिस आइडेंटिटी इज दिस. अभी हम लोगों ने प्रूव करके देखा. और स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या ध्यान रखते हैं, ये कुछ बातें समझ लेते हैं. स्टूडेंट्स, अगर सारी चीजें प्लस में है तो बहुत आसान होता है. जैसे फॉर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ. एग्जाम्पल, सपोज x प्लस 2y प्लस 3z होल स्क्वायर. आपको स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल दिया गया है. तो a के प्लेस पे क्या है x, b के प्लेस पे 2y और c के प्लेस पे 3z. तो स्टूडेंट्स देखिए आप कैसे एक्सपेंड करेंगे. a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे. ये a है, ये b है और ये c है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, a b एंड c. a स्क्वायर मतलब स्टूडेंट्स इसका आप स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा. फिर b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2
2i² नहीं होगा स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे 2i² लिख देते हैं। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 2i²। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स आप डायरेक्टली चाहे आपको समझ में आ जाता तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्लस स्टूडेंट्स c का स्क्वायर करेंगे यानी ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3z²। फिर प्लस 2 तो आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स ab, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x × 2y। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 2bc, bc मतलब इन दोनों का होगा तो 2 तो आएगा ही आएगा फार्मूले की वजह से, और b का मतलब 2y और c का मतलब 3z। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे। फिर स्टूडेंट्स क्या होगा 2 तो आएगा ही आएगा, c और a यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 × 3z × x, या x × 3z भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। तब देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स इस आइडेंटिटी को कैसे अप्लाई करेंगे। अब इसको आप सिंपलीफाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x² प्लस इसका वैल्यू होगा 4y², इसका वैल्यू होगा 9z², इसका वैल्यू होगा देखिए 2 × 2 = 4xy, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, तो 12yz प्लस 2 × 3 = 6, 6xz और zx। Students, whatever you like, you can write. So this is the expansion. This process is called expansion. Expanded. This is expanded. Expanded मतलब स्टूडेंट सब समझ पा रहे हैं। एक्सपेंडेड मतलब उसको ओपन कर दिया, उसकी वैल्यू निकाल दी पूरी आइडेंटिटी का यूज करके। तो ये आप देख पा रहे हैं, जब सारे प्लस में होते हैं तो बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स। अब एक जरूरी बात जो हमको देखना है, जब कोई निगेटिव होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और कितना पड़ेगा, कहां पर पड़ेगा। आइए थोड़ा सा उस चीज को समझते हैं। इसको मिटा देता हूं स्टूडेंट्स। अब सोचिए स्टूडेंट्स, आपका कोई एक निगेटिव हो गया, ए बी सी कोई भी निगेटिव हो जाए। सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए आपका सी निगेटिव हो गया, a + b - c। अगर तीसरा टर्म निगेटिव हो गया तो इसका असर कहां पर पड़ेगा स्टूडेंट्स। देखिए a² b² c² तो सेम रहेगा, क्योंकि निगेटिव का आप निगेटिव c का स्क्वायर करेंगे तो भी स्टूडेंट्स प्लस का c² ही आएगा। स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर इज अगेन पॉजिटिव। लेकिन स्टूडेंट्स इसका असर कहां पड़ेगा, जहां पर c है, यानी इसमें c है और इसमें c है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। याद रखिए c का मतलब c निगेटिव है, मतलब जहां पर c है वहीं पर निगेटिव हो जाएगा। अगर एक माइनस आया है स्टूडेंट्स, क्या इनमें से कोई एक निगेटिव है, ओनली वन निगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक निगेटिव है तो वही वाला माइनस हो जाएगा। उसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या होगा a² + b² प्लस माइनस c का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो फिर से c² ही हो जाएगा, प्लस 2a और b की जगह पर तो कुछ आया नहीं, दोनों पॉजिटिव ही है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। प्लस 2b और देखिए c निगेटिव है, c निगेटिव होने की वजह से -c होगा और -c का मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आ जाएगा 2 -c और a। देखिए तो निगेटिव कहां पर असर डाल रहा है स्टूडेंट्स, इन तीनों पर कोई असर नहीं डाल पाएगा माइनस साइन। a² + b² + c² तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 2ab, यानी इफेक्ट कहां पड़ेगा, जहां पर वो आया हुआ है, तीसरा c जहां पर आया हुआ है, ये -2bc हो जाएगा और ये -2ca हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक्सपेंड करते समय ध्यान देते हैं, ये निगेटिव डालेगा जहां पर c आया हुआ है स्टूडेंट्स। इसी तरह से जब b निगेटिव होगा तो एक निगेटिव वाला इस तरह से डालता है। अब जब दो निगेटिव होते हैं स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स इसका इनडायरेक्टली मीनिंग होता है कि अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और ये निगेटिव हो जाएंगे। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि a निगेटिव है, क्या है, b and c निगेटिव। अगर b और c निगेटिव है तो इनडायरेक्टली इट इज, यानी इसका अगर माइनस कॉमन ले लें तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, a + b + c होल स्क्वायर, और माइनस का कॉमन लेने से कोई असर नहीं पड़ता। तो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग होता है कि a निगेटिव है, क्या है स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब क्या है कि
दो माइनस आएगा तो उसका बिहेवियर इस टाइप का होगा। यानी अगर बी और सी दोनों में निगेटिव आया है तो इधर इसमें से कौन सा निगेटिव होगा, वही निगेटिव होगा जहां ए आया हुआ है। यानी स्टूडेंट्स ये वाला और ये वाला दोनों निगेटिव हो जाएंगे, बाकी ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आइए कोई एग्जाम्पल समझेंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। तो आई हैव टेकन ऑल द पार्ट्स। तो स्टूडेंट यू आर टू एक्सपैंड दीज क्वेश्चंस। आई विल प्रोजेक्ट द क्वेश्चन इन द स्क्रीन। So students you are to expand x plus 2y plus 4z। स्टूडेंट्स आप बताइए मुझको क्या है, बायनोमियल है कि ट्राइनोमियल है? ट्राइनोमियल है एंड इट इज स्क्वायर्ड मींस यू विल यूज आइडेंटिटी, ट्राइनोमियल आइडेंटिटी व्हिच इज स्क्वायर्ड मींस a plus b plus c होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर ऑफ a plus b plus c स्टूडेंट्स आप लोग को याद है? तो एक मिनट सोच के रिमाइंड कीजिए। सो स्टूडेंट्स this is a, this is b and this is c। so a स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो या स्टेप बाय स्टेप लिख दो? एक क्वेश्चन मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर। c स्क्वायर मींस स्टूडेंट्स 16z स्क्वायर प्लस सारे पॉजिटिव है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, इसके गलत होने की कोई चांस नहीं। 2ab 2 स्टूडेंट्स यानी 2a मींस फर्स्ट टर्म, b मींस सेकंड टर्म प्लस 2bc स्टूडेंट्स 2 this 2 is from formula 2bc, this is b 2y and this is c 4z। तो स्टूडेंट्स 2bc हो गया। नाउ इन द लास्ट 2ca, बट 2ca यानी 2 into c स्टूडेंट 4z and a यानी x। तो सिंपली स्टूडेंट्स यू कैन राइट these 6 terms a square plus b square plus c square। directly I have written 4y square, directly I have written, and here I have written I will simplify in next step। तो what will be your answer students? x square plus 4y square plus 16z square। Students these first three terms will be always positive in every question। यहाँ पर कोई निगेटिव तब भी। Now next student 2 to the 4, so this is 4xy। Now students let us see 2 to the 4 and 4 for the 16yz and plus 2 for the 8zx। तो स्टूडेंट दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज वेरी सिंपल। स्टूडेंट्स लेट अस सी दिस क्वेश्चन। और कहां पर ध्यान रखेंगे हम लोग, कहां पर स्टूडेंट्स आप देखिए b निगेटिव है यानी सेकंड टर्म इज निगेटिव, सेकंड टर्म निगेटिव है तो कहां असर डालेगा, वही असर डालेगा जहां पर b आता है। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर यानी 2x होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दो आप चाहें तो 4x स्क्वायर लिख देता हूं मैं, 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर या माइनस y का स्क्वायर, माइनस y का स्क्वायर स्टूडेंट्स। और अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y स्क्वायर इज y स्क्वायर एंड प्लस z स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए 2ab स्टूडेंट 2a इज 2x एंड b इज माइनस y। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इस माइनस की वजह से यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। जब आप डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट माइनस लगा सकते हैं यहाँ पर और इस y को पॉजिटिव लिख सकते हैं। डायरेक्ट जैसे आप करते हैं डायरेक्ट, अगर मैं किसी को डायरेक्ट करता स्टूडेंट तो मैं कैसे करता, इसकी निगेटिव की वजह से यहाँ माइनस आ जाता और इन दोनों का मल्टीप्लाई करता तो 4xy। ये स्टूडेंट्स मेरा डायरेक्ट आ गया। ठीक है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab हो गया प्लस 2bc। देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 दिस इज फ्रॉम फार्मूला एंड bc मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें निगेटिव है तो इसके निगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा 2yz। तो b निगेटिव है मतलब जहां जहां b आएगा स्टूडेंट्स तो 2ab
2ab और 2bc, इन दोनों में b आता है ना, इसलिए ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे। ये दोनों पे पहले माइनस का साइन आएगा और माइनस किसकी वजह से आएगा, इस y की वजह से, प्लस लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स 2ca, 2ca मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, यानी स्टूडेंट्स 4xz डायरेक्ट कर दिया मैंने। देखिए स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट आंसर आ गया। मैं फार्मूला अप्लाई किया और सिंप्लीफाई भी करता गया। तो देखिए स्टूडेंट्स निगेटिव कहां पर आया, निगेटिव वहां पर आया जहां पर ये मिडिल टर्म है, यानी b आया हुआ है। यहाँ पर निगेटिव हुआ और यहाँ पर निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव है। तो निगेटिव वहीं पर होता है जो इसमें निगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आपको और क्लियर करने के लिए ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। ये वाले क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए -2x ये निगेटिव है, पहला निगेटिव है, फर्स्ट टर्म निगेटिव है। अगर आप इसको a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर के नजरिए से देखें, इफ यू कंपेयर विद दिस, तो a इज निगेटिव, a की वैल्यू -2x, ये निगेटिव है। तो फार्मूले में जहां जहां पर a आया है वहां पर ये इफेक्ट करेगा और माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज a स्क्वायर, पहले क्या होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर मींस इसका डायरेक्ट स्क्वायर करो तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है स्टूडेंट्स, तो 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 9y स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स मैं एक लाइन सॉल्व कर दे रहा हूं, जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो दो लाइन लिखेंगे, पहले इस तरह से लिखेंगे, बाद में सिंप्लीफाई करके दूसरी लाइन में आंसर करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4z स्क्वायर। अब देखिए 2ab होगा ना स्टूडेंट्स, तो इसकी निगेटिव की वजह से आएगा, तो -2 फार्मूले वाला है ये, और निगेटिव इसकी वजह से आ रहा है, और 2 3 का कितना होगा 6, तो 6xy, 2 3 जा 6xy। तो आप इसको चाहे तो डायरेक्ट करके पूरा डायरेक्ट करके क्या लिख सकते हैं -12xy, तो 2ab वाला निगेटिव हुआ। अब स्टूडेंट्स फिर क्या करना होगा 2bc, तो यहाँ पर तो कोई निगेटिव नहीं है, इसलिए 2 3 जा 6 और डबल करेंगे, तो 2 3 जा 6 और डबल करेंगे तो 12yz। ठीक है, फिर जब आप इसको करेंगे तो फिर a आएगा स्टूडेंट 2ca में a आएगा ना, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और xz हो जाएगा, डबल करेंगे तो 8xz। लेकिन स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ इसके पहले निगेटिव है, इस निगेटिव होने की वजह से ये इसका क्या आएगा माइनस का आएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, इसको ये 2ab है और ये 2ca है और ये 2bc है, तो इसमें निगेटिव कौन सा हुआ आपको अच्छे से देखिए, जहां a आया पहला वाला टर्म निगेटिव हुआ, इसमें a आया हुआ है तो ये वाला निगेटिव हो गया, और इसमें ये आया हुआ है तो a फर्स्ट टर्म की वजह से जहां a आया है वही निगेटिव हो गया। स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, और इसमें चूंकि दोनों पॉजिटिव इसलिए ये b वाला क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। तो इसमें सबसे चैलेंजिंग काम है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे स्टूडेंट्स, निगेटिव का स्क्वायर करने पर भी पॉजिटिव रहता है। ये दीज आर हैप्पी पर्संस, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। Whatever problem will happen, this will happen with 3 terms, 2ab, bc, ca। तो स्टूडेंट्स आपको सिंपल सा फंडा दिमाग में रखना है, जो निगेटिव है और a निगेटिव है तो जहां जहां a आता है वही वाला टर्म क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, सिंप्लीफाई मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप दो लाइन में भी लिख सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। से अगर आप कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, कंपेयर करके देखिए तो ये दोनों निगेटिव है, और मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जब दो निगेटिव होते हैं उसका मतलब अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों निगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और ये वाला निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स जब फाइनल एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें वो वाले टर्म निगेटिव होंगे जहां जहां ए आया होगा, जिसमें ए आया होगा, यानी 2ab और 2ca वाला निगेटिव होगा। आइए देखते हैं, तो कोई गड़बड़ नहीं है। आइडेंटिटी स्टूडेंट्स आपको याद ही होगा, सो इसको मैं फिर से डिटेल से लिख के करूंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे निगेटिव कहां पे आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -7b होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी -c होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा अगले लाइन में, प्लस
अब स्टूडेंट्स देखिएगा 2BC 2AB इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा ना, लेकिन ये निगेटिव है तो लिखेंगे कैसे 2 इंटू 3A इंटू -7B। तो देखिए ये ओवरऑल अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस देखिए स्टूडेंट्स ये नेगेटिव जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव होगा। मैं एक बार लिख के बता देता हूँ 2B की जगह -7B और C की जगह -C प्लस, ठीक है 2CA 2C कितना स्टूडेंट्स C की जगह पर स्मॉल c है और A की जगह पर 3A है, ये निगेटिव है एंड 3A। तो स्टूडेंट्स ये पूरा मैंने फिर डिटेल से लिख दिया है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इनको पॉजिटिव होना ही होना है। अगर आप स्टूडेंट धोखे से -49B² लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। देखिए दिस इज 9A² प्लस 49B² एंड प्लस C² -C² इज अगेन पॉजिटिव। देखिए इसमें एक निगेटिव है तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 एंड 6 7 जा 42AB। यहाँ पर देखिए दो निगेटिव है, दो निगेटिव का मल्टीप्लाई होने से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला टर्म क्या हो गया पॉजिटिव, 2 7 जा 14BC प्लस 2CA। देखिए स्टूडेंट्स एक निगेटिव है तो मल्टीप्लाई होने से निगेटिव आएगा, फाइनल प्रोडक्ट विल बी निगेटिव। तो 2 3 जा 6 6CA। अब स्टूडेंट देखिए दिस इज योर आंसर। अब इन दिस आंसर आपका ये वाला निगेटिव आया है और ये वाला निगेटिव आया है। मैंने क्या बताया था, जब दो निगेटिव हो तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग होता है कि ये दोनों माइनस लाइन होने पर पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये निगेटिव होगा। यानी स्टूडेंट्स जहां पर A आया हुआ है वही निगेटिव है, क्योंकि ये वाला टर्म क्या होता है 2AB होता है और ये वाला टर्म क्या होता है 2CA होता है। तो देखिए ये निगेटिव ये वाला पॉजिटिव हो गया ऑटोमेटिक। तो दो निगेटिव का मतलब माइनस कहां पर आएगा, दो निगेटिव वाला में माइनस कहां पर आएगा। मैं स्टूडेंट्स आपको ट्रिक बता रहा हूं, वैसे आपको वैसे सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक वो साइन आ जाएगा, लेकिन अपना फाइनल आंसर चेक करने के लिए कि निगेटिव कहां पर होगा तो वो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, फिफ्थ पार्ट आप कर लेंगे खुद से। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, 1/4A - 1/2B + 1 होल स्क्वायर। 1/4A का मतलब है स्टूडेंट्स A/4, 1/2B का मतलब है B/4 और +1 तो है ही स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट देखिए A + B + C, अगर आप इससे कंपेयर करें तो देख पा रहे हैं A की वैल्यू इसमें B निगेटिव है। क्या कौन सा निगेटिव है स्टूडेंट्स, B निगेटिव है। आइए इसको एक्सपेंड करते हैं। फार्मूला याद है ना आपको, यू शुड रिमेंबर द आइडेंटिटी, you should recall the identity in your mind. If you are recalling in your mind, then very soon you will be totally able to apply the identity in very less time. So students, A² means this is A/4 स्क्वायर। डायरेक्ट भी कर सकता हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। प्लस -B/2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2AB। यानी स्टूडेंट 2A के प्लेस पे देख रहे हैं आप A/4 है और B के प्लेस पे क्या है -B/2, 2AB हो गया प्लस 2BC, 2A/4 नहीं सॉरी 2BC मतलब -B/2 एंड 1 प्लस 2CA। यानी स्टूडेंट 2 × 1 × A/4। अब देखिए मैंने आपको पहले से बता रखा है कि कौन सा निगेटिव होने वाला है, जहां जहां B आया है वही निगेटिव होगा। आप सिंप्लीफाई करके भी देख लीजिए, ये तो हमेशा तीनों पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स। तो सो दिस विल बी A/4 होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं A² / 16 प्लस B² / 4 प्लस 1। स्टूडेंट्स दिस 2 एंड दिस 2 विल कैंसिल, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ओवरऑल इट विल बी माइनस and minus AB/4. Students, you can see this 2 and this 2 be cancel, one negative one positive, so overall it will be -B and इससे cancel हो जाएगा, cancel out, 2 will cancel out, तो students this will be
2 1 2, 2 2 4, all are this will be a by 2. So students, this is our answer. तो you can see students in final answer which term are negative. ये दोनों नेगेटिव है क्योंकि ये 2ab था और ये 2bc था, तो 2ab और 2bc दोनों में भी आया हुआ है, इसलिए ये जो बीच वाला टर्म है इसकी वजह से ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। और मैंने आपको प्रॉपर मल्टीप्लाई करके भी समझा दिया क्यों नेगेटिव हो रहा है। तो होपिंग स्टूडेंट्स कैन डू एंड यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, यू कैन सॉल्व एग्जांपल, आई विल गिव एज अ होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं 5। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 यू कैन सी दिस इज आवर एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी यू आर हियर वी आर टू फैक्टराइज, यहाँ पर हमको क्या करना है, फैक्टराइज। एंड स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन। अभी जो हमने एक्सपेंड किया था तो हमने होल स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल आइडेंटिटी यानी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर फाइंड किया था, यानी उसको एक्सपेंड कर दिया था। स्टूडेंट्स उसका रिवर्स प्रोसेस है उसका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन मीन्स हमको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आइडेंटिटी याद ही होगा, एक बार आप आइडेंटिटी ध्यान से देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स अब आपको स्टेप्स बता रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान से देखना है। स्टूडेंट्स पहला स्टेप क्या होगा कि पहले 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 टर्म्स को आप होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। पहला स्टेप, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, कन्वर्ट फर्स्ट 3 टर्म्स इन होल स्क्वायर्स। स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, पहले 3 टर्म को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर कोई नंबर नहीं है होल स्क्वायर तो उसमें रूट लगा करके उसे होल स्क्वायर बना लीजिए। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी this is whole square of 2x, this is whole square of 3y and this is whole square of 4z। तो पहला स्टूडेंट्स पहला काम आप क्या कीजिए, सबको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स दूसरा स्टेप आएगा कि इनमें किसी के पास निगेटिव है क्या, तो कैसे पता चलेगा किसके पास निगेटिव है, इसके लिए आप बाद के एक्सप्रेशंस को देखिए ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या बताया था 2ab 2bc 2ca। तो स्टूडेंट 2bc और 2ca समझ पा रहे हैं आप। 2bc अगर आप देखेंगे bc मतलब y और z, इसको मल्टीप्लाई करने से बनेगा ये। तो स्टूडेंट्स ये निगेटिव है, 2bc वाला टर्म निगेटिव है और 2ca वाला टर्म निगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि C निगेटिव था 100%, C निगेटिव था, C की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो स्टूडेंट्स आप C के पहले क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, यानी Z वाले पोर्शन को आपको क्या करना है, माइनस में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के पहले थोड़ा सा जगह याद करने के रखेंगे, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होता है। तो पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप, आप माइनस साइन अगर कहीं आया हुआ है, माइनस साइन आएगा स्टूडेंट्स, और जब भी माइनस साइन आएगा 2 टर्म में आएगा, तीनों में कभी भी नहीं आएगा स्टूडेंट्स, गारंटीड। तो सेकंड स्टेप है कि माइनस साइन डिसाइड कर लेंगे, अगर किसी आ रहा है तो किस में आ रहा है, सारे प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, इट इज टू सिंपल फॉर अस। अब स्टूडेंट देखिए इनको 2ab में एडजस्ट कीजिए, इनको देख करके आंख मूंद करके आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए स्टूडेंट 2 a की जगह क्या लिख देना है, a की जगह 2x लिख देना है और b की जगह क्या लिख देना है स्टूडेंट 3y, और एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। स्टूडेंट्स एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100% आएगा। पहले 2 स्टेप अगर आपके श्योर हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटीड स्टूडेंट्स। अगर पहले 2 स्टेप आपने सही से किए हैं, होल स्क्वायर बनाया है और माइनस साइन सही जगह लगा लिया है। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्या होगा, प्लस देखिए 2bc होगा ना, b का मतलब 3y और c का मतलब -4z। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 तो 2 होता है 2 एंड ca मतलब ये और ये -4z एंड 2x। स्टूडेंट्स कहीं पर गलत नहीं हुआ इसलिए क्लास वेरीफाई कर लेते हैं, क्लास वेरीफाई कीजिए, इसको पूरे को सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है इसमें 100% 12xy होगा। इसको पूरे को सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए ना 4 3 से 12 एंड 12 2 से 24, और ये माइनस है, इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको देखिए 2 4 जा 8 एंड 8 2 जा 16, एक नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा तो 16zx। स्टूडेंट्स मतलब आ रहा है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पूरा फार्मूला स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब आप लिख सकते हैं 100% क्या कि दिस इज 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यही आपका आंसर होगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी जरूर मेंशन करेंगे, आइडेंटिटी लिखना जरूरी होता है। मैं आइडेंटिटी प्रोजेक्ट कर दे रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे उसको। सो यू आर गेटिंग स्टूडेंट्स, 2 स्टेप है, 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप, पहले 3 टर्म मेक द होल स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, कंप्लीट द होल स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अगर जैसे अभी ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें होल स्क्वायर नहीं है, आप कहेंगे सर क्या हो गया, कहां से हो गया, लेकिन देखिए इस समस्या का समाधान इधर है, इधर रूट वगैरह दिख रहे हैं ना आपको, इसका मतलब रूट का स्क्वायर बनाना है। 100% आपको फर्स्ट 3 टर्म का स्क्वायर बनाना ही बनाना है। तो आइए स्टूडेंट, किसी भी नंबर का वैसे होल स्क्वायर नहीं, तो हम इसमें क्या लगा लेते हैं, रूट लगा लेते हैं। रूट 2x होल स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स ये तो अकेला ही है, तो होल स्क्वायर ऑफ y, और ये स्टूडेंट्स ये अगर आप देखेंगे तो 2 रूट 2 का होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स, 2 रूट 2 होल स्क्वायर। तो आपके फर्स्ट 3 टर्म का होल स्क्वायर बन गया। अब हो सकता है स्टूडेंट्स इसमें कोई निगेटिव हो, निगेटिव होने के पूरे चांस है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये और ये निगेटिव है, ये वाला देखिए ये और ये निगेटिव है, इसका मतलब 100% इनमें से कोई एक निगेटिव होगा। तो हमें सर्च करना है कौन सा होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, बहुत आसान है सर्च करना, समझ पा रहे हैं। ये क्या है, अगर आप इसको देखेंगे 2ab है और ये क्या है 2ca है, तो देखिए 2 ये वाला निगेटिव है, ये वाला निगेटिव, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, मतलब ए निगेटिव रहा होगा स्टूडेंट्स। तो आप ए के पहले माइनस का साइन लगा लीजिए। तो आपके पहले 2 स्टेप कंप्लीट। अब आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ यहां से देख देख करके लिख दीजिए। देखिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं, प्लस 2 ए का मतलब माइनस रूट 2x और b का मतलब y, 2ab हो गया ना स्टूडेंट्स। सिर्फ आपको यहां से देख देख के लिख लेना, अगर आपने माइनस साइन डिसाइड कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट प्लस 2 फार्मूले वाला b मतलब y, c मतलब ये 2 रूट 2 एंड z। स्टूडेंट्स आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्रॉस वेरीफाई करने का मतलब है इसको देख लीजिए, चेक करके यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसको चेक करके देख लीजिए ये आ रहा होगा स्टूडेंट्स। फिर लास्ट में प्लस 2ca भी लिखना होगा ना, c का मतलब 2 रूट 2z, दिस इज c, एंड a का मतलब स्टूडेंट्स माइनस रूट 2x। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप कई क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अब स्टूडेंट्स आप चेक कर लीजिए, 2 2 4 और रूट 2 मिला के 8 हो जाएगा, तो ये 8x z आ जाएगा, यहाँ से 8x और z आ जाएगा। एक माइनस है, इस माइनस की वजह से ये निगेटिव भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देख रहे हैं आपका सिंपल सा फार्मूला बन गया है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, यानी स्टूडेंट दिस इज माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z एंड इट्स होल स्क्वायर। तो दिस इज स्टूडेंट्स आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सम एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू टू सॉल्व इन योर होम असाइनमेंट। आप ये क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूजन हो तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने पहले भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, जिससे ये और अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स आइडेंटिटी वाले वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में, जो आपके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है उसमें रहेगी, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।